Hello students, welcome to another new session of law. So in our previous classes we have discussed about the introduction to law, means what is law, where it came from, what are the systems those are followed in India, clear, different branches of law, and how they are operated, how the laws are made, clear. So today in this session we are going to start the main session that we call, that is the content according to our syllabus, clear. So in the previous classes, clear, we just introduce about law, because you see, as I have already suggested you the importance of law, the need of law, clear. Unless whenever you are going to market, clear, or going outside with a vehicle, you must know all the rules relating to that particular road and vehicle. Yes or no? Vehicle means we must also know the rules relating to that vehicle. For example, if you are using a moped, clear, and suddenly one friend offer you his bullet to go, clear, and have a journey, clear. So you must learn what are the separate rules relating to that bullet, because the rules of moped and bullet are different. Yes or no? Unless you know the rule, it is very difficult to handle, and also you may be handle it, but if there are some problem arise, then you have to face the problem, clear, and that problem may destroy your some part of your property or career or your life. Yes or no? So law is such a thing that you has no excuse that, sir, I don't know about the law, clear, I use it without knowing the law. So there is no excuse. Unless whenever you are enjoying, clear, or applying any rule, any activity, you must know the rule, clear. If you don't know the rule, then there is no excuse, you have to be punished, clear. So that's why, and to maintain a stability, peaceful, clear society and environment, we require law, clear. So our syllabus is totally concentrating not on the whole matters of the law, but only the basic concept of commercial or business, or we call it as mercantile law, clear. So from today, from this class onwards, we are going to discuss only mercantile or commercial law, clear. So see students, as we all know that today's environment, clear, today's world is everything about trade, commerce, industry. Yes or no? Everything is depend upon trade, commerce and industry, and we are very fortunate for being a part of this field or this culture, we can say, clear, from where we can manage not only our own activity, but we can manage the others activity, clear. After completing your study, you might be a manager, clear, or a chartered accountant or a cost accountant of a reputed company. The company may be a public company. If it is a public company, then you deal for public funds. If it is a private company, then also you deal for the private sections. Maybe it may be public, private or whatever. All just focus on to develop the society. Yes or no? How to grow Indian economy, clear, and how to dominate the global economy and how to dominate the global market. Yes or no? So as we know, India is a
developing country, and within 2030 it is estimated that India will be a leading global player. Yes or no? As like today America, China, clear, India also dominate the full globe. So that is very important. Yes or no? To us to know everything about commercial, clear, commerce, mercantile, clear, business, and to know to handle the commerce, to handle the business properly, we must know the law. Clear? So that's why focus on law. Clear? Just try to understand each and everything. Clear? Not because of these are on your syllabus, you have to attend the paper for scoring good, for passing the exam, but also it is very important for your whole life. Okay, you are going to take decisions, important decision. You have to deal with the public, the environment, clear, business environment, the full globe with these laws. So just try to store it in your secondary memory, not in primary memory. Clear? You know what is primary memory, secondary memory? Primary memory, that is temporary, not for temporary purpose. Clear? Because see, after appearing your foundation exam, clear, just it means just for 3 months, clear, 2 to 3 months, you have to keep it in your mind for 2-3 months. After that you may forget. Clear? But I suggest don't go for erasing those things. Clear? Put it in your secondary memory so that it will last for longer till your death. Yes or no? है कि नहीं? आप जब मर रहे होगे, clear, at that time also your company or your organization or some of your relative, clear, or where you are relating, they may come to you for a important decision. Clear? At that time also you required the law. Clear? So today students, we are going to have a introductory class about mercantile law. Clear? See, as in the previous chapters we have discussed where from the mercantile law arise, the origin. Clear? Purely mercantile law is a part of civil law, that is private law. Obviously private law means the law which deals with individual to individual, one person to another person. Yes or no? Person to person. If some problem arises, then the case goes to the public sector. Yes or no? Public will interfere in two individual only when you create any problems, difficulties, any doubts. Clear? If any conflict arises. But if you make your transaction peacefully, successfully, then there is no interference of the public. Clear? For that purpose, this private law is confined that how the private individuals can discuss or can do their own business without seeking the help of public. Public means the public authorities, the law, clear, or the police, administration, etc. You carry it on your own way. We have the instructions, guideline, the limitation upon which you have to follow the rules, regulations, principle, and within that framework you have to do your business for your own benefit and for the benefit of the society at large. Because whatever we do, commerce is such a thing, we do, the prime objective is our own profit, but with our own profit we also profiting the others, the society, the government, the people, the customer, the supplier, our competitor, government, yes or no, our employee, our staff, all, full society get benefit, clear, with our trading. Yes or no? So that's why our India, and especially as you know, India is specially a what? Dominant country with trade and commerce. Yes or no? In all over the world, India is dominating trade and commerce. Clear? So that's why it is very important concept to learn
and to understand and to keep it in your mind. Okay, so ये जो है अपना कमर्शियल लॉ इज ए पार्ट ऑफ सिविल लॉ, जो कि सिविल लॉ क्या बोलता है कि सिविल लॉ laid down the rules, the regulations, the rights and the obligations, those are to be followed by individuals, clear, to fulfill, clear, or to run their relationship, clear, that is private relationship between them smoothly, easily. If there are some problem, clear, arise, clear, hurdle arise in between their relation, then the law suggests the remedies, the way to solve those conflicts. Okay, and again to create a good relation, yes or no, which is most important in the society. Clear? So ये जो है अपना कॉमर्शियल लॉ क्या बोलता है कि कॉमर्शियल लॉ और मार्केंटाइल लॉ और बिजनेस लॉ इज प्योरली, क्लियर, इज प्योरली ए पार्ट ऑफ civil law, clear, which define, which confine the rules, regulations, clear, the principles, the rights and obligations towards two individual person, though are engaged themselves in mercantile activities. Mercantile activity means in exchange of goods and services. Clear? Okay, so commercial law is a branch of law and a part of civil law which defines the rights, obligation, okay, rules, principles for individuals engaged in mercantile or commercial activities. Commercial activities, that is, commercial activities means what? Trade, clear, commerce, business, trade, commerce, business, clear. For example, namely, what is this? वो सब क्या है? वो है कि सेलिंग, ओके, सेलिंग एंड बाइंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्लियर, सेलिंग एंड बाइंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ट्रांसफर, सच थिंग्स, क्लियर. ये जो सब चीजें हैं, ये सब के जो रूल्स, रेगुलेशंस, जो राइट्स, ऑब्लिगेशन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, मींस ऑब्लिगेशन ऑफ वन पर्सन टू विथ अनदर, क्लियर, वो सब क्या होता है इसमें लेड डाउन किया गया है, किसमें? कॉमर्शियल लॉ में. ठीक है, क्लियर. और बोल सकते हैं कॉमर्शियल लॉ is a separate branch of separate body of law. It is a separate body, it is a full system, full-fledged, full authentic body, clear, authenticated by the Constitution of India regarding to control the commercial activities. Clear? Commercial law is a separate body of law, fully authenticated to control the mercantile persons, their activities, okay, their rights,
to control the mercantile person, their activities, their transactions. Clear? Their transactions, and to protect their rights and obligations. Rights and obligations towards mercantile partner. Clear? Commercial law is a separate body of law. Yes or no? It's a separate body of law. Clear? Full-fledged body. It has the, जैसा हम बोलते हैं ना body, मतलब full complete body, मतलब we are not depending upon other for our activity. हमारा जो body है ना, हम खुद का काम खुद कर सकते हैं. That is called a body. वैसे ही commercial law में जितना rules regulation जो भी हैं, जो laid down किया गया है, fully fledged, मतलब पूरा का पूरा full body, जिससे कि मतलब इंडिया में जो मार्केंटाइल पर्सन्स हैं, टू कंट्रोल करने के लिए किसको? मार्केंटाइल पर्सन्स को. क्लियर? और उनके द मार्केंटाइल पर्सन के जो मार्केंटाइल एक्टिविटीज हैं, देयर ट्रांजैक्शंस हैं, ये सबको कंट्रोल कर सकता है. उतना पावर है उसके पास. एंड इतना ही नहीं, उसके बाद टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. जो इंडिविजुअल मार्केंटाइल पर्सन है उनके राइट्स, ओब्लिगेशंस दूसरे के लिए, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल करता है और स्मूथली रन करता है. ठीक है? आ गया समझ में? जो कि अपना पूरा जो है इंडिया में, ईच एंड एवरीवेयर ट्रेड कॉमर्स इज देयर, है कि नहीं? हर कोई इधर क्या करता है? कुछ ना कुछ बिजनेस में एंगेज है, अपने आप को एंगेज रखता है कि नहीं? क्लियर? कुछ खरीदना, कुछ बेचना, कुछ बना के बेचना, कुछ खरीद के बेचना, कुछ चीजों को इंपोर्ट करना, कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करना, यही होता है बेसिकली द ट्रेड एंड कॉमर्स, है कि नहीं? जो बिजनेस करते हैं हम लोग. तो ये सब ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो, ये प्रोटेक्ट करने का जरूरत क्या है डेफिनेटली है कि नहीं? कि सोचो कि if we have two person, okay, Ram is here, clear, and Charlie. राम एंड चार्ली, टू पर्सन, है कि नहीं? कि राम ने कुछ चीजें प्रोड्यूस किया. क्लियर? राम प्रोड्यूस समथिंग एंड चार्ली केम टू नो दैट राम प्रोड्यूस समथिंग दैट आई वांट. चार्ली को जो चीज चाहिए वो चीज किसके पास है? राम वो चीज बनाता है. फिर चार्ली क्या बोला राम को कि मुझे तुम जो प्रोडक्शन करते हो वो मुझे चाहिए. कब चाहिए? कि चलो मेरा, सोचो कि क्या बना रहा है, कि राम बोलो कि कुछ मिल्क आइटम बनाता है, मिल्क प्रोडक्ट. ओके, मिल्क प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एंड पनीर. टेक इट, आइसक्रीम एंड पनीर. क्लियर? तो चार्ली के घर में किसी का मैरिज फंक्शन है, ठीक है? तो ये बोला कि मुझे वो चीज चाहिए, तुम मुझे वो देना. ठीक है? कितना चाहिए? वो क्वांटिटी सब डील हो गया. प्राइस कितना, क्वांटिटी, उसका कितना प्राइस चार्ज होगा, सब डील हो गया. कि कब चाहिए. क्लियर? ये डील हो गया. डील हुआ मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज हुए. जैसे कि चार्ली ने बोला मैं इतना चाहिए, इतने दिन में चाहिए. क्लियर? जितना पैसा लगेगा. राम ने बोला कि मुझे इतना पैसा चार्ज करूंगा और ऐसा शेप में मुझे चाहिए कि मनी जो देना है वो करेंसी में देना है, कि चेक में देना है, कि अकाउंट में डालना है, कैसे डालना है. हो गया उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग. क्लियर? कुछ हो गया उन लोगों के बीच में बातें. ठीक है? सो जो बातें जो फिक्स हुई, बोथ हैव ट्रस्ट. सोचो कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है कि नहीं है? बट डील हो गया मतलब डेफिनेटली यू हैव टू ट्रस्ट देम. तो क्या हुआ कि सोचो जब वो जो डेट आया, डेट आने पे राम ने क्या किया? राम ने जो चीजें डील हुई थी, जितना क्वांटिटी, वो राम ने सक्सेसफुली सेंड कर दिया चार्ली को. ठीक है? फिर चार्ली बोला कि अभी मैं बिजी हूं, तुम्हारा प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, मैं ये जो प्रोग्राम है खत्म करके तुम्हें अपना पेमेंट दे देता हूं. राम ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं. ठीक है? गुड अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग है.
क्लियर, ट्रस्ट है। तो राम ने बोला ठीक है। चार्ली का सोचो खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम खत्म होने के बाद तो देखो ये जो प्रोग्राम के टाइम पे ये दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कमर्शियल रिलेशन, मार्केंटाइल ट्रांजैक्शन, है कि नहीं, कि दोनों के बीच में डील हुआ कि मैं इसको ये बेचूंगा, तुम वो खरीदोगे, बाइंग एंड सेलिंग। तो चार्ली का हो गया, चार्ली का जो था पर्पस वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अभी चार्ली ने बोला था राम को कि कल लाओ, राम कल आया, चार्ली इज नॉट प्रेजेंट इन हिज होम, घर पे नहीं है। घर में पूछा किधर है चार्ली, कि चार्ली गया है काम पे, आप इवनिंग को आओ। ठीक है, राम इवनिंग पे है, इवनिंग पे भी नहीं। ऐसा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन हो गया, राम को अपना जो पेमेंट नहीं मिला। मतलब राम ने जो प्रॉमिस किया था, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो इन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी बातों की, वो राम ने फुलफिल किया, बट चार्ली ने फुलफिल नहीं किया। अभी राम क्या करेगा, उसका प्रोडक्ट तो चला गया, फिजिकली वो भी बहुत हैरेस हो गया, मेंटली हैरेस हो गया। अभी वो करेगा क्या, क्या करेगा, अभी वो क्या करेगा, टेक द हेल्प ऑफ कॉमर्शियल लॉ। कॉमर्शियल लॉ का अभी वो हेल्प लेगा कि उसको अपना जो पैसा है वो रिकवर करना है। और ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ चार्ली की वजह से, जो 5-10 दिन का जो मेंटल प्रेशर, जो हरासमेंट लगा, उसके बदले में भी उसको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए, कि मुझे वो क्यों हरास किया ऐसा। दिस इज हरासमेंट, है कि नहीं। मैं आपको बोलूंगा कल दूंगा, कल दूंगा, कल दूंगा, आप एवरी टाइम आओगे, नहीं पाके जाओगे, दैट इज हरासमेंट, आई एम हरासिंग यू, यस और नो। तो उसका भी, ये भी मतलब अगेंस्ट द लॉ, है कि नहीं, ये भी लॉ के बाहर जाता है। बिकॉज इन द सोसाइटी वी कैन नॉट हरास अदर्स इंटरेस्ट। तो उसके बदले में क्या होगा, अभी राम विल टेक द हेल्प ऑफ मार्केंटाइल लॉ। तो मार्केंटाइल लॉ के पास वो चीजों का सॉल्यूशन है कि राम को कैसे उसका जो है, क्लियर, जो राइट्स है, उसका जो है राइट्स जो उसको मिलना चाहिए वो कैसे मिलेगा। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में द इंपॉर्टेंस। और दूसरा भी है कि इधर लॉ है ना, तो चार्ली इज आल्सो है पर्सन, उसको भी लॉ पता है। तो चार्ली अगर दिमाग में वो आएगा भी कि चलो मैं राम को पैसा नहीं देता हूं, तो भी वो नहीं करेगा। ये मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, ठीक है, वो पहला वाला खत्म एग्जांपल का, ये दूसरे साइड में आ रहा हूं। अगर चार्ली भी वो करने से पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि चार्ली आल्सो नो कि अगर मैं वो फुलफिल नहीं करूंगा तो देयर आर सर्टेन क्या है रूल्स हैं जिसके मुताबिक, है कि नहीं, जिसके अंडर मुझे कुछ ना कुछ डेफिनेटली पनिशमेंट मिल जाएगा। मुझे जो देना है पैसा वो तो दूंगा, प्लस ये हैरेसमेंट के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी लगेगा। तो चलो मैं वो नहीं करता हूं, मैं जो डील हुआ है वो मैं कर देता हूं, है कि नहीं, क्लियर। तो ये सब चीजें स्मूथली, देखो चार्ली ने नहीं सोचा, चार्ली ने पेमेंट कर दिया, अगर हो गया भी तो भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि द बिजनेस और कमर्शियल लॉ हैज सम लेड डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि वो हो पाए, है कि नहीं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन क्रिएट हुआ दैट इज कॉल्ड ए लीगल रिलेशन, है कि नहीं। लीगल रिलेशन मीन्स दे आर केम इनटू ए रिलेशन क्लियर बाय लॉ, by the rules and regulation. Whenever you are dealing with someone else, then there is a relationship create between you and the others, clear। तो वो टाइम पे अगर कोई एक दूसरे का जो है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स अदर मार्केंटाइल पर्सन, उसके अगेंस्ट में कोई अगर कुछ ब्रेक करना चाहेगा तो यू कैन नॉट ब्रेक इट, बिकॉज इफ यू वांट टू ब्रेक इट देन यू विल बी पनिश्ड, इफ यू ब्रेक इट देन यू विल बी पनिश्ड, क्लियर। वो करने से पहले आपके दिमाग में मैं नहीं करूंगा तो पनिशमेंट आएगा, तो कर दिया तो भी आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो दोनों साइड से आपको रेस्ट्रिक्टेड, यू आर रेस्ट्रिक्टेड कि नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे आराम से करना है, बिजनेस अच्छे से करना है कि नहीं। तो इधर राम के जो इंटरेस्ट, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, चार्ली का इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए ये सब हो रहा है, ठीक है। और सोचो ये मैंने जो बोला एग्जाम्पल, उसका दूसरा साइड भी ले सकते हैं कि चलो चार्ली ने दे दिया एडवांस और राम ने जो डील डे था मैरिज के दिन, वो दिन पे प्रोडक्ट नहीं दिया। चार्ली को हो गया मुश्किल, क्योंकि उसको ऑर्डर था ना, वो पनीर का कुछ आइटम बनाने वाला था, आइसक्रीम देने वाला था, फिर लोगों का हरासमेंट हो गया कि है कुछ अच्छा नहीं है,
फंक्शन कुछ अच्छा नहीं था, खाने का कुछ अच्छा नहीं था, पनीर नहीं था, आइसक्रीम नहीं था, तो उसको भी जो हुआ प्रॉब्लम उसके वजह से भी वो राम के ऊपर भी केस कर सकता है। इधर पार्टी, क्लियर, कोई भी किसके ऊपर कर सकता है। मतलब ये है कि कॉन्फाइन करता है कि हर एक को दूसरे के साथ आपने जो डील किया है, जो प्रोमिस एक्सचेंज किया है, यू हैव टू फॉलो दैट। अगर फॉलो नहीं करोगे तो आपको जबरदस्ती करवाया जाएगा, ठीक है, क्लियर, विथ पनिशमेंट, एक्स्ट्रा पनिशमेंट, क्लियर, दैट इज द कमर्शियल लॉ कि ऐसा मार्केंटाइल। ये हो गया बाइंग एंड सेलिंग। बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट विद इन कंट्री, आउटसाइड कंट्री, कोई भी, बिकॉज नाउ इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल मार्केट। हम ऐसा नहीं देखेंगे कि इंडिया को इंडिया, क्लियर, स्टेट टू स्टेट, बाहर से भी हम कर सकते हैं, है कि नहीं, बिकॉज ई जो हो गया क्या, ई मार्केटिंग, ये सुनो, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट मार्केट, क्लियर, फुल ग्लोबल में आप कहीं पे भी कोई भी चीज बेच सकते हो, कहीं से भी कोई भी चीज ला सकते हो। तो ये जो है अपना इंडियन लॉ हर एक आइटम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्लियर। आप लोग सोचो कि सर, अगर सोचो कि हम यूके की एक पर्सन के साथ कुछ डील किए और यूएसए की पर्सन के साथ कुछ डील किए, है कि नहीं, तो वो टाइम पे हम कैसे वो ट्रांजैक्शन को सेटल करेंगे। सो नॉट टू वरी, बिकॉज उसका भी जो है क्राइटेरिया कमर्शियल लॉ में है कि नहीं। जब भी हम किसी आउटसाइड पर्सन के साथ डील करते हैं, क्लियर, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर, दे आर कम इनटू आवर लीगल फ्रेमवर्क। हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वो पहले बंध जाते हैं, फिर हमारे साथ डील होता है। अगर वो ब्रेक करेंगे तो जो कि ग्लोबल जस्टिस है, कोर्ट, वो उधर वो केस जाएगा, वो पर्टिकुलर पार्टी को उसके हिसाब से, क्लियर, जो भी है पनिशमेंट उसको इंपोज किया जाएगा। ओके, क्लियर, आ गया समझ में। तो ये है स्टूडेंट्स मार्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। और देखते हैं और बहुत सारे चीजें हैं। सो एज वी नो, मार्केंटाइल लॉ इज डील विथ द मार्केंटाइल एक्टिविटीज, क्लियर। मार्केंटाइल लॉ डील विथ, mercantile law deals with mercantile activities, clear, like जो है हमें सब पता है, बोल चुका हूं पहले से, like कॉन्ट्रैक्ट, जो मैंने बोला ना कि राम और चाली, उन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग एक्सचेंज होगा, क्लियर, वो पहले क्या होता था जब लॉ नहीं था, प्रायर टू 1872, है कि नहीं, वो कैसा होता था, वो सिंपली होता था, मतलब बातचीत में ही होता था, म्यूचुअल ट्रस्ट में होता है। बट अभी क्या होता है, यू मस्ट क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट, आप दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, है कि नहीं, कि क्या क्या, मतलब राम ने श्याम को क्या क्या प्रोमिस किया है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, वो सब राम को फुलफिल करना पड़ेगा। कोई एक भी चीज अगर वो छोड़ दिया तो चार्ली हैज द राइट टू claim that from Ram with the help of the law, clear। वैसे ही चार्ली को भी राम के अगेंस्ट में जो जो प्रोमिस किया है वो सब फुलफिल करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो राम भी चार्ली के ऊपर केस कर पाएगा by taking the help of our commercial law, ठीक है। तो वो जो चीजें क्या, किसने किसको क्या प्रोमिस किया है कि नहीं, वो सब रहता है कॉन्ट्रैक्ट में। जैसे हम बोलते हैं ना कॉन्टैक्ट, हम one person contact another for exchange of some feelings, exchange of some thing, communication purpose के लिए, उसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वही कॉन्ट्रैक्ट में भी वही होता है, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होता है कि नहीं, कि मुझे क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, इसमें से दोनों को किसको क्या फायदा होने वाला है, अगर हम ये चीजों को कॉन्फाइन टाइम में करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो जबरदस्ती करवाया जाएगा, क्लियर। सो दैट इज जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी चीज के लिए, लाइक सेल ऑफ गुड्स, गुड्स में अभी और भी आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी अच्छा, गुड्स एंड नहीं बोलते, गुड्स, सर्विसेज एंड आइडियाज, ये सब एक एक प्रोडक्ट है कि नहीं। किसी का कोई चीज है, मैं अगर एक फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहा हूं तो आई एम डीलिंग विद गुड्स, अगर मैं अपना कुछ सर्विस बेच रहा हूं तो आई एम डीलिंग विद सर्विस, दैट इज द सर्विस इज गुड्स फॉर मी। इफ आई एम डील विद सम
कंसल्टेंसी एडवाइस मैं आइडिया देता हूं, तो फॉर मी दैट इज आल्सो माय गुड्स, तो दैट इज सेल ऑफ गुड्स। क्लियर है कि नहीं? तो कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स, बैंकिंग, क्लियर, इंश्योरेंस, ये सब चीजें आज की दुनिया में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? कॉमर्स के फील्ड में तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्लियर। देन और क्या है? जैसे कि पार्टनरशिप, डिफरेंट फॉर्म बनाते हैं। पहले इंडिविजुअली हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकता है, पार्टनरशिप टू पार्टनरशिप हो सकता है कि नहीं? पार्टनरशिप, कंपनीज, क्लियर, इन लोग के जो है एक्टिविटीज वो सबको रिलेटेड, क्लियर। देन कैरेज और वैसे ट्रांसपोर्ट के लिए, क्लियर। लॉजिस्टिक अभी आ गया नया लॉजिस्टिक्स, है कि नहीं? लॉजिस्टिक मतलब जो आपको आपके चीजों को जो एक जगह से दूसरी जगह जो लेके जाते हैं विद देयर ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं? आपने फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, वो जो सेलर एक जगह पे, बायर एक जगह पे, तो ये जो सेलर से बायर तक जो लेके आता है प्रोडक्ट को, उसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक, है कि नहीं? वो भी एक बिजनेस है, वो भी आजकल बहुत ही मतलब जोरों शोरों से चल रहा है कि नहीं? सो और जो बाकी है इंटेलेक्चुअल, क्लियर, योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, है कि नहीं? जो है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, जो कि आपको मालूम है क्या है वो सब? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क, पेटेंट, क्लियर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ठीक है? ये सब जो है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ये सब चीजें जाते हैं किसमें? कॉमर्शियल और मार्केंटाइल लॉ के अंदर। ओके, तो हम क्या करेंगे? ये सब चीजों को 1 by 1 डील करेंगे इन आवर सब्सिक्वेंट, नॉट इन द, ये अपने पूरे क्लास में नहीं होगा, सब्सिक्वेंट टर्म्स आल्सो, सब्सिक्वेंट जो ग्रुप्स आएंगे वो टाइम पे आप लोग ये सब पढ़ोगे, है कि नहीं? क्लियर? ओके, ये हो गया इंट्रोडक्शन। देन अभी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में द ओरिजिन ऑफ मार्केंटाइल लॉ, मतलब ये जो मार्केंटाइल लॉ है हम जो कि अपने इंडिया में फॉलो करते हैं वो आया किधर से, ठीक है? क्लियर? वेयर फ्रॉम इट कैम, क्लियर? सो उसको हम बोलेंगे क्या? ओरिजिन ऑफ मार्केंटाइल लॉ। मार्केंटाइल लॉ आया किधर से, क्लियर? तो देखो स्टूडेंट्स, जो कि हमें आप हिस्ट्री अच्छे से पढ़े होंगे, शायद याद होगा नहीं होगा, छोड़ दो वो कोई बात नहीं, याद है तो ठीक है, मैं अब जो बोलूंगा आपको वो समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा, दिमाग में है। अगर नहीं है तो पहली बार सुन रहे हो, मतलब समझ के सुन लीजिए, उसको याद रखिए। तो क्या हुआ देखो, जब पहले सबसे पहले ना जो अपना जो पीरियड था, है कि नहीं? मतलब एज वी नो डिफरेंट एज, मीडिएवल पीरियड, ये अभी जो आ गया मॉडर्न पीरियड, है कि नहीं? तो जब हम मीडिएवल पीरियड में थे, दैट इज अराउंड 400, क्लियर? 400, ये सुनो, 400 AD आफ्टर डोमिनो, नहीं, आफ्टर जिसको बोलते हैं अराउंड, मतलब अभी हम कौन से साल में हैं? 2020 में है। मैं ये बात कर रहा हूं कब का? मीडिएवल पीरियड, मतलब 400। अभी इसको भी हम क्या बोलते हैं? 2020 AD, उसको भी बोलते हैं हम AD, आफ्टर डोमिनो, मतलब ख्रिस्ट के बाद, है कि नहीं? तो AD तो हम नहीं लिखते हैं, तो मैं बोल रहा हूं 400, क्लियर? जब था 400, इन द ईयर 400, तभी से क्या हुआ कि ये जो अपना ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न पार्ट, मतलब जो एशिया, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, उधर बहुत सारे प्रॉपर्टीज फुल ऑफ थे, मतलब द एशिया, क्लियर, वाज फुल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वेदर इट इज नेचुरल प्रॉपर्टी, है कि नहीं? कोई ले लो
मतलब खाने का, पहनने का, यूज करने का, इंडस्ट्री का, सब चीजों का जो मतलब पूरा भंडार था ईस्ट में। और बाकी जो थे, जो दूसरे वाले जो कॉन्टिनेंट लाइक इन टुडे दैट इज यूरोप एंड अमेरिका, वो जगह पे इतना सारा नहीं था, है कि नहीं। तो वो लोग क्या करते थे, सबसे पहले वो इंडिया के साथ ट्रेड में कंसर्न किए। नॉट कि इंडिया, वो तभी तो इंडिया बोल के नहीं था, पूरा मतलब एशिया एक पार्ट था, उसको ईस्ट साइड बोलते थे, है कि नहीं, ईस्टर्न पार्ट। तो तभी उनके साथ ट्रेड होता था। तो तभी से ना ये जो ट्रेड एंड कॉमर्स जो डील करना एक दूसरे के साथ, जो कि हमने पढ़ा है बार्टर सिस्टम, तभी बार्टर सिस्टम था, है कि नहीं। जब पहले शुरू हुआ बार्टर सिस्टम ही था कि दूसरों को क्लियर, वन प्रोडक्ट इन एक्सचेंज ऑफ अनदर प्रोडक्ट। मुझे दाल चाहिए, क्लियर, तुम्हें व्हीट चाहिए, तो व्हीट लो, डाल दो, है कि नहीं। बाकी नेचुरल कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास है और मेरे पास कुछ खाने का नहीं है, तो नेचुरल प्रॉपर्टी लो, जो कि नेचुरल प्रॉपर्टी मतलब एनी गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कि कोई पत्थर हो, आयरन ओर हो, वो लेके जाओ, मुझे खाने का आइटम दो। वैसा चलता था, दैट इज बार्टर सिस्टम। देन धीरे धीरे जो हमने देखा है मार्केटिंग का जो फिलोसॉफीज है कि नहीं, उसमें हमने देखा कि धीरे धीरे वो कैसे चेंज हुआ फ्रॉम एंशिएंट टाइम। तो तभी से ना ये जो डील वगैरह होता था, क्लियर। सो व्हाट इट मीन दैट जो ये जो ओरिजिन है ना मार्केंटाइल लॉ का, ये इंडिया से नहीं हुआ है और ईस्टर्न पार्ट से नहीं हुआ है, क्लियर। ये किधर से आया है, ये दैट इज फ्रॉम वेस्टर्न पार्ट से ये शुरू हुआ है, क्लियर। और जिसको हम बोलते हैं, ये जो पहले सबसे पहले कौन से एरिया में शुरू होता, कि यूरोप में, यूरोप, क्लियर। और यूरोप का डोमिनेंट कंट्री कौन है, यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं कि ये जो है अपना मार्केंटाइल लॉ, क्लियर, इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, और जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम इंग्लैंड, है कि नहीं, उधर से ही वो शुरू हुआ है, ठीक है, क्लियर। बस इतना, मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को, मतलब आपके नॉलेज के लिए, ज्यादा ज्ञान के लिए मैं सब बोल रहा हूं, ठीक है। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है, क्लियर। बट बिफोर गोइंग फॉर समथिंग यू मस्ट नो द फाउंडेशन, है कि नहीं, क्लियर। सो दैट्स व्हाई ये जो शुरू हुआ है किधर से, इंग्लैंड। तो देखो क्या है कि मार्केंटाइल लॉ वाज द नेम गिवन टू दैट लॉ व्हिच इन्वॉल्व्ड इन इंग्लैंड, क्लियर। मार्केंटाइल लॉ is evolved from the western part or western countries during medieval period, clear, during medieval पीरियड से वो शुरू हो चुका था, है कि नहीं। देयर उन लोगों का ट्रेड, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, क्लियर। देयर उन लोगों का जो है ट्रेडिंग का, कस्टम मतलब जो प्रोसीजर रहता था, कस्टम, ट्रेडिशंस, क्लियर, एंड रूल्स, their trade, custom, tradition and rules between country to country, for mercantile deal develop the mercantile law, है कि नहीं। वो लोग जब एक अलग कंट्री के साथ जब कुछ मार्केंटाइल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, तभी से उन लोगों ने अपना जो कस्टम, ट्रेडिशन के हिसाब से रूल्स बनाया, है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं मार्केंटाइल लॉ। वही लॉ स्टूडेंट्स तभी से आया है, और हमारे इंडिया में भी जो मैक्सिमम जो रूल्स है ना, क्लियर, दोज आर टेकन फ्रॉम देयर लॉ, फ्रॉम इंग्लिश लॉ, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश लॉ, है कि नहीं। सो वो जो है ना, देयर कमर्शियल लॉ
became an important part, become an important part and component of the common law. common law मतलब हर कोई, हर एक कंट्री, इंग्लैंड में मतलब जो कमर्शियल लॉ को पूरा का पूरा मतलब अथॉरिटी दिया गया, उसके साथ साथ नॉट ओनली इन द वेस्टर्न कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब में जितने भी कंट्री हैं, सब लोगों ने वो जो चीजों को एक्सेप्ट किया कि चलो ये जो है ना, ये जो रूल है सही है कि नहीं. ऑब्वियसली आज हम जो बोलते हैं राम और चाली के बीच में जो बिजनेस डील हुआ, उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है कि नहीं? डेफिनेटली जरूरी है. तभी भी वो लोग सोचे कि सब सोचे कि यस दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम. अगर कभी कुछ हो गया तो दूसरे पार्टीज को सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? तो ये जो ना कॉमन पार्ट, ये सब लोगों ने एक्सेप्ट किया था. क्लियर? So we can say the mercantile law is a part of English law of UK, और जिसका हम बोलते हैं इंग्लैंड, यूके और इंग्लैंड. ठीक है. सो वी कैन से द मर्केंटाइल लॉ इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश लॉ, है कि नहीं? जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश लॉ. और यूके का जो है क्या, यूके का जो लॉज होते हैं उसको हम बोलते हैं इंग्लिश लॉ बोलते हैं, है कि नहीं? सो अपना जो इंडियन लॉ जो है, इंडियन मर्केंटाइल लॉ, दैट इज मोस्टली बिलोंग्स टू द इंग्लिश लॉ, और यूके का जो इंग्लैंड लॉ. ठीक है कि नहीं? बट ग्रेजुअली दोस थिंग्स आर चेंज. जैसे कि ये जस्ट सिंपल एग्जांपल है. अभी हम लोग आपको कुछ पढ़ा रहे हैं और टीचर यूज्ड टू गिव सम आइडिया और लर्न यू, है कि नहीं? हम लोग आपको पढ़ाते हैं. क्लियर? तो वो चीजों के बाद, जैसे कि देखो सिंपल चीज है, अभी हम लोग आपको जो पढ़ाते हैं, हम लोग तो अपने मतलब फ्रॉम आवर बर्थ वो तो सीख के नहीं आए थे ना. हमारे टीचर्स ने भी, ये भी हमारे टीचर्स का ही मतलब कंट्रीब्यूशन है हमारे लिए कि हम आज आप लोगों के सामने ये कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, हम आपको सिखा रहे हैं. अभी हम जो आपको सिखा रहे हैं, आप वो चीजें समझ के मे बी फिर हमसे भी ऊपर जा सकते हो, है कि नहीं? डेफिनेटली इट्स ए कॉमन टर्म, कॉमन थिंग, है कि नहीं? कॉमन कॉन्सेप्ट है. मतलब ऐसा नहीं है कि जो हम हैं आप फ्यूचर में भी हमारे अंडर ही रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है. आप लोग हमसे बहुत आगे जाओगे, है कि नहीं? डेफिनेटली ये हमारा विशेष है कि आप लोग बहुत आगे जाओ, डेफिनेटली आगे जाओगे, है कि नहीं? तो जाओगे डेफिनेटली. तो उसका मतलब थोड़ी ना बोलोगे कि हमने सर से सीखा था तो सर के पास जितना नॉलेज है हमारे पास भी उतना ही है, ऐसा तो नहीं है ना. आपके पास डेफिनेटली ज्यादा नॉलेज आएगा, है कि नहीं? बस वही है जो अपना इंग्लिश मतलब जो इंडियन मर्केंटाइल लॉ भी है ना, हम कॉन्सेप्ट को एडॉप्ट किया इंग्लिश लॉ से, बट उसका मतलब नहीं कि इंग्लिश लॉ में जितना है हमारे पास उतना ही नॉलेज है. नहीं, हमारा जो मर्केंटाइल लॉ सिस्टम भी वो बहुत ही वास्ट हो गया है अब के टाइम पे, है कि नहीं? जो कॉन्सेप्ट मतलब फाउंडेशन सेम है, बट नया नया बहुत सारे ब्रांचेस आ गए हैं, बहुत सारे टर्म्स, टेक्निक्स वी डेवलप ऑफ आवर ओन. मतलब हम बोल सकते हैं कि अपना जो है इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग नाउअडेज. क्लियर? इट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंग्लिश लॉ, बट नाउअडेज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है कि नहीं? अपना जो इंडियन और एक स्टूडेंट्स और एक बात है कि जो इंडिया का जो रूल्स है पूरे ग्लोब में पूरा फेमस है. मतलब इतने हार्ड एंड फास्ट स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं, है कि नहीं? और एक चीज तो है, वो एडॉप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो दूसरा चीज है, बट आवर इंडियन लॉ आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है कि नहीं? पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में, ग्लोब में वो चीजों को रिकॉग्नाइज किया जाता है. ठीक है? सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ the mercantile law, but it was the originally evolved by the UK और western country जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड लॉ. but clear, we take the concept from there.
और हमारा जो कि रूल्स रेगुलेशन है वो ऑलमोस्ट उनके साथ मिलता है, बिकॉज द रीजन इज वी टेक द कॉन्सेप्ट फ्रॉम देम। उसके लिए बहुत सारे टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स, कंडीशंस, रूल्स सब मिलते हैं इंग्लिश लॉ के साथ। ओके, क्लियर? चलो, ये तो हो गया ओरिजिन। अभी हम देखते हैं इंडियन मार्केंटाइल लॉ। क्लियर? और मार्केंटाइल लॉ इन इंडिया, ओरिजिन को हटा दीजिए, ये हो गया मार्केंटाइल लॉ इन इंडिया। ठीक है, मार्केंटाइल लॉ इन इंडिया। इंडिया में मार्केंटाइल लॉ का सिचुएशन क्या है? देखो, बिफोर द ईयर 1872, 1872 क्या है जिसे कि हम पता है, देखो हर एक ट्रेड कॉमर्स का मतलब, देखो ये स्टूडेंट्स है कि ट्रेड एंड कॉमर्स में हम जितने भी एक्ट्स पढ़ेंगे, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस, जितने भी जो भी है, वो सब चीजों का शुरुआत किधर से होता है? ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम ए कॉन्टैक्ट। सोचो कि मुझे आपसे कुछ एक्सचेंज करना है, कुछ बोलना है आपको, मैं शुरू कहां से करूंगा? बाय कॉलिंग यू। आपको कॉल करूंगा कि मैसेज करूंगा, कुछ भी, मीन्स एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। क्लियर? तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो मार्केंटाइल सिस्टम है ना, उसका मतलब फर्स्ट स्टेज, आपको नीचे मतलब ग्राउंड फ्लोर से अगर फर्स्ट फ्लोर में जाना है, तो वो जो पहला है ना, जो सीढ़ी स्टेयरकेस का फर्स्ट पार्ट, दैट इज आवर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, है कि नहीं? दैट इज द फर्स्ट पार्ट। मतलब जब भी आप किसी के साथ कुछ डील करने के लिए जाओगे, तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग दैट यू डू इज मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट। उसके साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, क्या करना है क्या नहीं, पहले बातचीत होगा, फिर वो लोग आप लोग वो सब करोगे, है कि नहीं? सो इसीलिए वो जो कॉन्ट्रैक्ट कभी हुआ था अपना 1872, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या है, कितना है, सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिफोर 1872, दैट्स व्हाई वी टेक 1872 में अपना जो फुल फ्लेज मार्केंटाइल लॉ का पूरा सिस्टम डेवलप हुआ। उससे पहले क्या होता था, जैसे कि मैंने बोला कि वी आर फॉलोइंग द इंग्लिश लॉ। यस और नो? तो देखो, बिफोर द ईयर 1872 बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन इंडिया, इंडिया में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे, आप लिख लो, ठीक है, मैं जो डिक्टेट कर रहा हूं, बिफोर 1872 बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन इंडिया were regulated by the personal law of individuals who were involved in legal matters। पर्सनल के हिसाब से, मतलब तभी तो कोई मार्केंटाइल लॉ नहीं था। जो पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स, एक दूसरे के ऊपर जो ट्रस्ट था, जो उसके हिसाब से, एंड द फॉलोइंग द इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में जो है उसी को हम लेते हैं। जो मैंने बोला ना, ये जो लाइन कि पर्सनल लॉ ऑफ इंडिविजुअल्स, पर्सनल लॉ ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब जो इंग्लिश लॉ के हिसाब से एक पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर्सन मतलब मार्केंटाइल पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग जो जो रूल्स फॉलो करते थे, हम भी वही रूल फॉलो करते थे। ठीक है, तो वही रूल फॉलो करते थे टू प्रोटेक्ट, क्लियर, एंड टू रन योर बिजनेस, ट्रेड अच्छे से करने के लिए दूसरों के साथ। क्लियर? ड्यूरिंग 1872 द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर क्या हुआ? दूसरों के ऊपर कितना टाइम डिपेंड होगा, है कि नहीं? बहुत डिपेंडेंस हो गया। वो टाइम पे इन 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेवलप हो गया, एग्जिस्ट हो गया, केम इनटू एग्जिस्टेंस, है कि नहीं? तभी तो अपना मतलब अभी जैसे मैंने बोला हाउ लॉज आर मेड, लॉ कैसे बनता है, पार्लियामेंट, वो सब तो पहले नहीं था। था क्या? नहीं था, वो इंडिपेंडेंस के बाद ही आया। बट वो टाइम पे क्या था? इंग्लिश का टाइम था, है कि नहीं? वो लोग डेवलप करते थे। तो वो लोग खुद के मतलब हमारे जो इंडियंस हैं उन लोगों ने रेज किया कि हमारा भी कुछ एक रूल्स होना चाहिए। तो उसके हिसाब से तभी जो कंट्रोल में था, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन लोगों ने ही डेवलप किया था 1872 में द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडिया के नाम से उसका अलग का एक एक्ट परफॉर्म मतलब फ्रेम किया था, जिसके अंदर पूरा का पूरा सिचुएशन था रिलेटिंग टू मार्केंटाइल लॉ, है कि नहीं? कि मार्केंटाइल ट्रांजैक्शंस कैसे होना है, क्या होना है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो सो ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस विथ कॉन्फाइंड एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिफाइड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केंटाइल लॉ। यूनिफाइड मतलब सबसे अलग, सबसे बेहतरीन और सबसे यूनिक
एंड वी कैन से द फाउंडेशन ऑफ द मर्केंटाइल लॉ. मर्केंटाइल लॉ का जो फाउंडेशन स्टोन है ना, क्लियर, वो है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वो सबसे पहले शुरू हुआ था और उसी के ऊपर बेस करके सब दूसरा जो एक्ट है, मतलब आप कोई भी लॉ ले लो, कोई भी एक्ट ले लो, सोचो कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे के पार्टनर के साथ पार्टनरशिप एक्ट शुरू होगा ना, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू होगा कब? जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा. क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आ गया कॉन्ट्रैक्ट. बैंकिंग ले लो, इंश्योरेंस ले लो, लॉजिस्टिक ले लो. लॉजिस्टिक कि सेलर ने कुछ चीज बेचा, आपके पास आएगा, सेलर ने वो चीजों को लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को दे दिया, मतलब लॉजिस्टिक कंपनी को दे दिया कि ये मेरा चीज बायर के पास भेज दो, उसके लिए मेरे से चार्जेस ले लेना. तो सेलर और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के साथ क्या हुआ? एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मेरा जो चीज है वो कैसे आप सेफली लेके जाओगे, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उसका भरपाई कौन करेगा, क्लेम कौन करेगा, है कि नहीं? तो ईच एंड एवरी ट्रांसपोर्ट में हो, लॉजिस्टिक में हो, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेल ऑफ गुड्स, इन ईच एंड एवरीवेयर the first thing that is start with is the contract, है कि नहीं? So we can say that is the means सबसे बेहतरीन and unified था अपना जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. क्लियर and that is the foundation stone of our mercantile law. क्लियर? Since then उसके बाद according to our requirement many acts have been introduced to regulate the mercantile transaction or the trade, commerce and business in India. ठीक है? उसके बाद 1872 के बाद जब अपना खुद का आ गया क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो रूल्स आ गए, जो रेगुलेशंस, जब नॉलेज आ गया, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दैट जैसे कि हमारा बिजनेस ग्रो करता गया, उसके साथ नया नया रूल एक्ट पास होता गया और वो इंप्लीमेंट होता गया ऑल ओवर इंडिया. क्लियर? सो सिंस दैट मेनी एक्ट्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रेगुलेट द ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस, क्लियर, इन इंडिया. ठीक है? क्लियर? तो मर्केंटाइल लॉ इन इंडिया में आ गया. मैंने जो बोला लिखा वो मैं अभी नहीं लिख रहा हूं. क्लियर? जो डिक्टेट किया कि प्रायर टू 1872 वी आर फॉलोइंग द कॉमन इंग्लिश लॉ, क्लियर, और द पर्सनल, clear, the individual or personal law of individual to protect their own interest, the mercantile interest, clear. But in the year 1872 we developed the first the foundation stone of our mercantile law, that is Indian Contract Act. Clear? Since then many acts have been developed to regulate the mercantile transactions in India. Clear? Those are वो क्या क्या थे, है कि नहीं? वो सब क्या क्या थे देखो एक के भाई एक लिख लो, कब कौन सा एक्ट पास हुआ था. ठीक है? तो सबसे पहले तो हुआ क्या, मतलब वो जो पैराग्राफ लिखना है, मैंने जो बोला वो पैराग्राफ के बाद ये लिखना है कि द मेनी एक्ट्स दोज आर डेवलप्ड सब्सिक्वेंटली आर नंबर 1, जिसको पहले लिख दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट was passed in the year 1872. Clear? Indian Contract Act 1872. फिर Negotiable Instrument Act, Negotiable Instrument Act 1881. 1872 के बाद 1881 में पास हुआ Negotiable Instrument. Negotiable Instrument you know, Negotiable Instrument मतलब क्या है? जो कि अपना प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, मतलब ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करने के लिए हर टाइम पे तो हम कैश में डील नहीं कर सकते. वी यूज मतलब जो मिड पीरियड में, अभी तो हो गया ऑनलाइन, हो गया ऑनलाइन हम कर देते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इतना यूज नहीं करते. बट सबसे पहला आया मनी, उसके बाद आया ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर अभी आ गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर दो, कोई बात नहीं है, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का झंझट ही नहीं है कि नहीं. बट मिड पीरियड में बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अभी भी है उसका इंपॉर्टेंस, है कि नहीं. चेक थ्रू बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं. क्लियर? तो वो चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके रिगार्डिंग और एक नया एक्ट आ गया. ठीक है? दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881. जैसे मैंने बोला था लॉ एंड एक्ट, वो सब मर्केंटाइल लॉ के अंदर ये सब एक्ट आता है. मर्केंटाइल लॉ द फुल सिस्टम एंड द एक्ट,
क्लियर, एक एक चीजों को फोकस करता है। जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट विल फोकस ओनली ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एवरीथिंग रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट इन द ईयर 1930। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये जो हम लिखते हैं ना, ये जो ईयर क्यों लिखते हैं, बिकॉज ये ईयर में ये जो एक्ट पास हुआ था, इसलिए हम उसको उसी ईयर के हिसाब से जानते हैं। ठीक है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यू हैव टू से द फुल सेंटेंस, इतना पूरा बोलना चाहिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट ऐसे बोलने से नहीं होगा। कब पास हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, बिकॉज बहुत सारे एक्ट पास होने के बाद बहुत टाइम पे अपडेट होता है, चेंजेस होता है कि नहीं, अपडेट होता है कि नहीं। कि जैसे सोचो कि आपने अपने प्रोफाइल में, जब आपने +2 कंप्लीट किया था और 10th कंप्लीट हुआ, आपने अपना फेसबुक प्रोफाइल में लिखा था क्या कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन विद दिस परसेंटेज, नाउ मूविंग टू सम कॉलेज, है कि नहीं। फिर +2 खत्म होने के बाद फिर अपडेट करते हो लोगों को जानने के लिए, मतलब बताने के लिए कि मैं अभी, मेरा स्टेटस अभी ये है कि नहीं। फिर उसके बाद जब आप लोग सीए में कंप्लीट कर लोगे, फिर आप प्राउडली लिखोगे कि आई सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय सीए में, ये सुनो। तो ये जो अपडेट होता है ना, कि लॉ में भी वैसा ही अपडेट होता है कि जब नया नया आदत है, जैसे मैंने बोला था कि अभी जो रोड क्लियर, जो ट्रांसपोर्ट में और रोड सेफ्टी में जो नया नया एक्ट सब ऐड हुआ है, फाइन को लेके, रूल्स को लेके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, अमेंडमेंट। तो कब हुआ ना, उसको हम बोलते हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट बना था कभी 1956 में, अभी 2013 में फिर वो अमेंड हुआ, पूरा कंप्लीटली चेंज किया गया, उसको अभी हम क्या बोलते हैं कि कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2013। अमेंडमेंट वर्ड को यूज करते हैं कि पहला वाला था वो बाप है, ये उसका सबलिंक्स है कि नहीं। क्लियर, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस ईयर। क्लियर, फिर उसके बाद क्या हुआ, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट इन द ईयर 1932। क्लियर, 32 में पार्टनरशिप एक्ट बना। फिर उसके बाद कॉमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट, कॉमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट 1933। कॉमर्शियल सिक्योरिटी जो कि आप लोगों को मालूम है, जो कि हमने पढ़ा है, क्या, कौन से, फाइनेंशियल मार्केट में पढ़ा है नहीं। फाइनेंशियल मार्केट में हम लोग ने पढ़ा कि कौन सा है फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। जो कंपनी जब शुरू होता है क्या होता है, जो कि है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, है कि नहीं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्लियर, शॉर्ट टर्म में क्या, जो सिंपल, जो कि डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते थे, है कि नहीं, एग्रीमेंट्स होते थे। और लॉन्ग टर्म में जो कि शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, वो सब को बोलते हैं हम कॉमर्शियल सिक्योरिटी। तो ये कॉमर्शियल सिक्योरिटी मतलब जो फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, उसके लिए भी हमारा एक स्पेशल एक्ट बना है, जिसको हम बोलते हैं क्या, द कॉमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट 1933 में वो बना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 38। इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1938 में बना था इंश्योरेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है कॉमर्स में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, है कि नहीं। अगर कोई चीज आपको वेस्ट हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी का भी जो है इंश्योरेंस, जो टर्म्स एंड कंडीशन, वो भी बना था 1938 में। क्लियर, फिर उसके बाद बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, क्लियर, 1949। क्लियर, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे प्रीवियसली, वो जो एम्पियर होते थे, जो राजा होते थे, वो क्या करते थे, अपना पूरा का पूरा प्रॉपर्टी सब लेके बक्से में भर के रखते थे, तिजोरी में, है कि नहीं। बट जब लोगों को आया समझ में कि ऐसा भर के रखने में कोई फायदा नहीं है, चोरी हो सकता है, यूज नहीं पता चलता है कितना है क्या है, तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम आ गया कि बाहर रख दो, सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है एंड ग्रोथ भी है। क्लियर,
ट्रांसफर करना इजी है, डील करना इजी है, सो इसके लिए वो टाइम पे आ गया। बैंकिंग कंपनीज एक्ट फिर डेवलप हुआ 1949 में, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट इन द ईयर 1956, क्लियर। 1956 में आ गया अपना कंपनीज एक्ट, मतलब जो इंडियन कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, व्हाट एवर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी, सब कंपनी को कंट्रोल करने के लिए आ गया इंडियन कंपनीज एक्ट, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आ गया इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट 1986, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एक्ट पता है, इंसॉल्वेंसी मतलब पता है आप लोगों को कि एट द टाइम व्हेन आवर liabilities are more than our asset, clear, and we are unable to clear meet these liabilities, so at that time we may declare कि भाई मुझे कोर्ट में जाके, मैंने ये बोला है आपको कैसे है उसका प्रोसेस, कोर्ट में जाके आप एप्लीकेशन भरोगे कि सर मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, है कि नहीं, नहीं तो बाहर के जो है मेरे क्रेडिटर्स मुझे मार देंगे, है कि नहीं, मैं तो लोन नहीं दे पाऊंगा उन लोगों को, तो आप वही सेटलमेंट कर दो, आप ही बोल दो कि ये इंसॉल्वेंट हो गया, उसको छोड़ दो भैया। तो उसको रिलेटेड क्या क्या है प्रोसीजर, कैसा होता है, क्या होता है, वो सबको रिलेटेड हो गया इंसॉल्वेंसी एक्ट इन द ईयर 1986, क्लियर। देन उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट, क्लियर, will passed in the year 1996। आर्बिट्रेशन मतलब जो क्लॉज, जो स्पेशल क्लॉज होता है ना, चीजों को कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के, स्पेशल क्लॉज, क्लियर, स्पेशल क्लॉज। आर्बिट्रेशन मतलब स्पेशल रूल, स्पेशल क्लॉज, अपार्ट फ्रॉम योर कॉमन लॉ। कॉमन लॉ के साथ साथ आपके पास जो स्पेशल लॉ रहता है, वो चीजों को, मतलब सम स्पेशल लॉ रिलेटिंग आवर मार्केंटाइल एक्टिविटीज, वो होता है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। कॉन्सिलेशन मतलब जो दो कंपनी, दो पार्टीज के बीच में कोइंसाइल करने के लिए, मिलाने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए जो एक्ट है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट इन द ईयर 1996, क्लियर। एंड देन नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एक्ट कब हुआ? इन 2011। 2011 में आया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब द ट्रेडमार्क, है कि नहीं, पेटेंट, कॉपीराइट, वो सबको जो रिलेटेड, अपना जो आइडिया है कि नहीं, वो सबको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको रिलेटेड आ गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, क्लियर। एंड देन कैरियर एंड कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, वो बीच में रह गया, इसको बीच में आप ऐड कर दो स्टूडेंट्स। 1865 में, 1865 मतलब इधर, इधर, ठीक है कि नहीं, बिकॉज अब हम सीरियली लिख रहे हैं, सो इसलिए इधर और एक रह गया कि कैरियर एंड कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट, कैरियर, कैरियर एंड कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट इन द ईयर 1865 और 1865, सॉरी 1865, ओके स्टूडेंट्स, वो सबसे पहले बना था 1865 में, दैट इज द फर्स्ट लॉ बिफोर आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। कैरियर एंड कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट 1865, क्लियर। तो ये सब होते हैं डिफरेंट मार्केंटाइल लॉ, क्लियर, और एक्ट अंडर मार्केंटाइल लॉ इन इंडिया, क्लियर। देन विद दिस वी कंक्लूड आवर क्लास। ये है, हो गया कि मार्केंटाइल लॉ के ऊपर एक इंट्रोडक्शन क्लास। अभी इन द सब्सिक्वेंट, इन द नेक्स्ट क्लासेस विल स्टार्ट आवर द सिलेबस, द कोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे पहले, है कि नहीं, फिर नेगोशिएबल, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ये तीनों है आपके फाउंडेशन कोर्स में। अभी हम ये तीनों पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप ये सब चीजें इन योर फर्दर क्लासेस में, हायर स्टडी में पढ़ोगे, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे, होप फॉर द गुड, क्लियर, होप फॉर योर गुड कैरियर, गुड डे, थैंक यू।